Hello my dear kids, how are you my dear children? Welcome to Kidopedia explanation in English pre-primer Adorai series by Amit Publishing House. Yes, so first of all we are going to start a class alphabet song. Yes, we will sing a very beautiful alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, it was a lovely alphabet song. Okay, again एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time want you sing with me. Yes. So, अब हम क्या करेंगे? Now we will recognize alphabets. Yes, alphabet. So, first of all, this is A, capital A, and this is small a, capital A, small a. A is for apple and alligator, X and aeroplane. A, capital A, small a. Next is B. B is for bus, B for boy, B for book, B for bird, and B for bear. Next is C, capital C and small c. C is for car, cow, cat, cup and camel, right? Next alphabet is D, capital D, and this is small d. D for dragon, D for duck, D for dog, D for dolphin, and D for drum. D. Next is E, capital E and small e. E for elephant, E for ear, E for eye, E for eagle, and E for eraser. Our next alphabet is F. F for fish, F for fan, F for frog, F for flag, and F for flower. Next alphabet is G, small g, G. Sound क्या है इसकी? G, G. G for grapes, G for goat, G for giraffe, G for guitar, and G for gift. Yes. Next alphabet is H. Capital H and small h. H का sound ha. H for hen, H for hut, H for hand, H for horse, and H for hammer. Next is I. Small I, capital I, small I, E. इसका sound है E. I for insects, I for ice, I for ice cream, I for iron, and I for igloo. Next is J, capital J, and this is small j. J for joker, J for jackal, J for jacket, J for jug, and J for jam. Yes. Next is K. Small k, capital K. K for kangaroo, K for kiwi, K for king, K for kite, and K for key. Next alphabet after K is
L, L, small L. L, L, L का साउंड आता है ल. L for lion, L for ladder, L for leaf, L for ladybug, and L for lips. Next is M, 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 capital M and small m. M for mango, M for milk, M for monkey, M for mouse, and M for moon. Next is N, 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 N का साउंड है न, small n and capital N. N for nose, N for net, N for nurse, N for notebook, and N for nest. After N, O, 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 capital O, small o. O for owl, O for onion, O for ox, O for ostrich, and O for orange. P, small p, P, P. P का साउंड है प. P for pigeon, P for panda, P for penguin, P for pineapple, and P for pumpkin. Next is Q, Q, small q, Q. Q का साउंड है Q. Q for quail, Q for question mark, Q for queen, Q for quill, and Q for Q. Next है R, R, small r, capital R, small r, and R का साउंड है R for rainbow, R for rocket, R for rabbit, R for rose, and R for robot. Next is S, S for sheep. This is small s, this is capital S, and S का आएगा sh. S for ship, S for shark, S for soap, S for snake, and S for stars. Next है T, small t, capital T. T का है T. T for tree, T for tiger, T for teddy, T for teacher, and T for telephone. Next is U, small u. U का साउंड है a, U, a. U for umbrella, U for unicycle, U for utensils, U for unicorn, and U for up. Next is V, small v, V, V for violin, V for vegetables, V for vulture, V for vase, and V for van. उसके बाद है W, small w, W, V, W, अंदर से. W for watch, W for whale, W for water, W for whistle, and W for well. After W, next कौन सा है? X, small x, capital X. X for Xmas tree, X for Xmas, X for X-ray, X for Xerox machine, or X for exit. Next is Y, small y, capital Y. Y का य, yarn, yak, yoga, yo-yo, and yacht. Z, small z, capital Z. Z का साउंड है Z. Z for zebra, Z for zigzag, Z for zip, Z for zero, and Z for zoo. ये हमने क्या किया? These were the alphabets. अभी हमने alphabets को recognize किया था. And now what we are going to do today? Write the first letter of each picture. अब हमें हर पिक्चर का जो पिक्चर से फर्स्ट लेटर लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज A, this is B for bear, C for cat, D for dog. इनके हम फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं. E for elephant,
F for fish, G for goat, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kangaroo, L for lion, M for mango, N for nest, O for ostrich. अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हम पिक्चर्स को देख के उनका पिक्चर का फर्स्ट लेटर हम लिख रहे हैं, पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके. नेक्स्ट है P for penguin, Q for queen, R for rabbit, S for ship, T for tiger, U for umbrella, V for vulture, W for whale, X for Xmas tree, Y for yacht and Z for zebra. So अभी हमने पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज किया एंड उस पिक्चर का जो था फर्स्ट लेटर हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, राइट. सो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट. और अब हम क्या करने जा रहे हैं, वाओ, नरेट द स्टोरी टू द चिल्ड्रन. एंड बहुत अच्छी स्टोरी है. देखिए फर्स्ट स्टोरी में ये पिक्चर में ये है, देन ये और ये. ओके, तो अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं. इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, देयर इज अ लॉयन, उसके ऊपर एक कौन बैठा है, ये तो एक माउस बैठा हुआ है. तो इसमें क्या है, चलिए स्टोरी सुनाते हैं आपको. देयर वॉज ए जंगल, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जंगल. वहाँ पे देयर लिव्ड अ, कौन कौन रहता था, बहुत सारे जानवर थे और उसमें एक लॉयन भी था, एक ये माउस भी था. तो देयर एक बार क्या हुआ, लॉयन वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग एंड माउस जो था वो उसके ऊपर बैठ गया एंड ही स्टार्ट प्लेइंग. वो उसके ऊपर जो था वो खेलने लगा, किसके ऊपर, लॉयन के ऊपर. एंड लॉयन वॉज स्लीपिंग. अचानक लॉयन वोक अप, वो उठ गया एंड उसको बहुत तेज गुस्सा आया और उसने क्या किया, कैच द, उसने चूहे को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया एंड ही स्टार्टेड टू किल हिम. वो उसको मारने जा रहा था. अचानक रैट जो था, जो माउस था, उसने बोला प्लीज़ 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 सेव मी, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को. उसने उससे क्या किया, माफ़ी मांगी कि प्लीज़ सेव मी, अब मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो. तो लॉयन ने उसको लेट हिम गो, लैंड टोल्ड, उसने उसको जाने दिया और वो माउस था वो भागता हुआ चला गया. फिर एक बार क्या हुआ, लॉयन जो था वो एक नेट के अंदर, ही कॉट इन नेट, वो एक नेट के अंदर फंस गया, उसको शिकारी ने नेट में फंसा लिया. तो अचानक उसके जो फ्रेंड था, नहीं वो जो चूहा था जो था जिसको बचाया था, उसने जैसे देखा कि लॉयन नेट के अंदर फंसा हुआ है, उसने क्या किया, उसने अपने शार्प टीथ से ही कट द नेट. उसने लॉयन ने, उसने चूहे ने, माउस ने नेट को काट दिया एंड ही सेव्ड हिम फ्री, और लॉयन को फ्री कर दिया नेट से. लॉयन वॉज वेरी हैप्पी और ही सेड थैंक यू टू माउस. उसने माउस को थैंक यू बोला और फिर वो दोनों क्या थे, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए. तो ये थी हमारी स्टोरी. तो बच्चों इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, इसका क्या, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डू गुड एंड हैव गुड. अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा ही भला होगा. अगर आप भला करेंगे किसी का तो आपका भी भला होगा. जैसे कि शेर ने भला किया था, शेर ने किया था ना, उसने माउस को छोड़ दिया था. जब माउस को उसे पकड़ा था तो माउस ने कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तो लॉयन ने उसको छोड़ दिया था. उसने अच्छा काम किया था तो उसका भी भला हुआ. कैसे, जब वो लॉयन जो था नेट में फंस गया था तो माउस ने उसको बचा लिया था. कैसे, अपने शार्प टीथ से नेट को काट के. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इससे भी सीखी होगी कि आपको भी सबका हमेशा अच्छा ही करना है, भला ही करना है. दिस वॉज द स्टोरी. सो प्लीज़ क्लैप द हैंड. यस, नाउ नेक्स्ट इज, हमारा नेक्स्ट क्या है, वो माई क्लासरूम.
यू स्टडी इन क्लासरूम। बच्चों जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत सारे क्या क्या होता है क्लास में? टीचर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बुक्स, चॉक, डस्टर, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं हम सब लोग, बेंच, ये देखिए बेंच है, डेस्क, पेंसिल, इरेजर, रूलर, स्कूल बैग, ये सारा सामान होता है ना जब हम क्लास में जाते हैं। व्हेन वी गो टू द क्लास तो हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कितना कुछ आप देखते हैं जब आप क्लास में जाते हैं, जब आप देखते हैं बेंच भी है, टेबल भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, चेयर भी है, टीचर भी है, रूलर भी है, चॉक भी है, डस्टर भी है, मैप, बुक शेल्फ जिसमें से मैम बुक्स निकालती हैं, डस्टबिन भी एक कॉर्नर में रखा होता है, ग्लोब एंड चार्ट ऑल्सो। दीज आर द थिंग्स विच वी सी इन आवर क्लास। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा एक गेम है बच्चों। दिस इज द गेम। जब ये डाइस के साथ खेला जाएगा, when you will sit with your मम्मा पापा या आप अपने बड़े भाई भैया के साथ या सिस्टर के साथ आप ये वाला गेम खेलेंगे, राइट। ये आपको डाइस के साथ विद द हेल्प ऑफ डाइस से आपको ये खेलना है। एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीच हियर मूव 4 steps ahead to meet। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, एक मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इफ़ यू रीच हियर मूव 4 steps ahead to meet the peacock। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, एल के पास पहुँचे हुए हैं, अगर ऐसे डाइस से आपने हेल्प किया और डाइस से आप यहाँ पे पहुँच गए, तो हमें 4 steps अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पीकॉक के पास। 4 steps से कैसे चलेंगे? 1 2 3 and 4। 4 से हम कहाँ पहुँच गए? P फॉर पीकॉक के पास। इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ डाइस ये वाला गेम आप ज़रूर खेलिएगा, राइट। नाउ अब है 2 letter वर्ड्स। अब हमें 2 letter वर्ड्स बनाने हैं। क्या है? देखिए, blend the sounds of the 2 letters and form 2 letters words, write them and read them aloud। जैसे कि A है, A को प्लस T, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, A और T को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो एक क्या बन जाएगा? कौन सा वर्ड बन जाएगा? AT एट, AT एट। तो ऐसे ही अब हमें इनको मिलाना है। जैसे कि A और S, अगर हमने A और S को कंबाइन कर दिया तो एक बहुत अच्छा वर्ड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? AS S, AM। अब इन AM को हमने कंबाइन कर दिया तो बन गया AM M। AN, A और N को भी हम कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा N। GO, गो। NO, नो। देखा आपने कितने अच्छे अच्छे से वर्ड बन रहे हैं। O और N को हमने ज्वाइन करके बना दिया ऑन। T और O को टू। B और Y को अगर हम साथ में लिखेंगे तो बन जाएगा बाय। D और O को मिला देंगे तो बन जाएगा डू। M एंड Y को मिलाएंगे तो बन जाएगा माय। ये देखिए आपने कैसे वर्ड्स बन जाते हैं। 2 वर्ड्स को आपने मिलाया, ज्वाइन कराया। 2 वर्ड्स को ज्वाइन कराने के बाद हमारे कितने अच्छे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। S एंड सो, S एंड O को मिलाया तो बन गया सो। I एंड इफ को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बनेगा IF, इफ। अगेन आई विल राइट, क्योंकि F अच्छा नहीं बनाता। I एंड F, इफ। IF को मिला के बन गया IF, इफ। नेक्स्ट है I और S। I एंड S को अगर हम ज्वाइन करेंगे, I एंड S इज, राइट। I एंड T को ज्वाइन किया, IT इट, वेरी गुड। O
एंड ऑफ, ओ एंड एफ को मिला के बन गया ऑफ, यू एंड एस को बना के बन गया यू एस अस। नेक्स्ट है यू पी, यू एंड पी को ज्वाइन किया बन गया अप। अब नेक्स्ट है 1 2 3, दिस इज फॉर यू, यू हैव टू डू these 3 words, right? Good habits, this is a ये है बहुत अच्छी पोएम जिसमें हमारी गुड हैबिट्स के बारे में बताया बच्चों। एंड आई नो यू ऑल हैव वेरी गुड हैबिट्स, बट हम इस सॉन्ग को एक बार रिवाइज करेंगे और इसको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करते रहना है, राइट? ब्रश 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 योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, take your bath early in the morning, comb your hair early in the morning, drink your milk early in the morning, go to school early in the morning, This was the गुड हैबिट्स का एक बहुत अच्छा सॉन्ग था विच यू हैव टू लर्न इट, राइट? एंड नेक्स्ट इज द वॉवल्स। देयर आर 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द 5 वॉवल्स इन इंग्लिश, राइट? और कॉन्सोनेंट्स है, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे? 21। कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दीज आर द कॉन्सोनेंट्स। और 5 क्या है हमारे? 5 आर द वॉवल्स। अब क्या करेंगे हम? नाउ what we have to do, words with A, E, I, O, U, right? A, a bag, a tab, a bat, E for E, अब E क्या आ रहे हैं देखिए, ये तो A के थे, B, A, G बैग था ना, T, A, P, B, A, T, इन सब में A लगा था। नेक्स्ट है E के वर्ड्स, E वाले वर्ड्स, पेन, P, E, N, पेन, H, E, N, hen, and BED बेट। नेक्स्ट इज आई। आई के कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके बीच में आई आता है? BIN बिन, FIG फिग एंड PIN पिन। नेक्स्ट है O। O वाले टॉप, TOP टॉप, COT कॉट, BOX बॉक्स। नेक्स्ट इज U के BUS बस, BUN बन और SUN सन। ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो वॉवल वाले वर्ड्स थे, जिनके बीच में वॉवल वर्ड्स आते थे। नाउ प्रैक्टिस, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द वॉवल। कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द वॉवल। अब हम इनमें वॉवल्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट वर्ड है एरोप्लेन, तो हमने यहाँ पे कर दिया AEROPLA यानी एरोप्लेन। फिर है ईगल, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? EAGLE। नेक्स्ट है इग्लू, इग्लू में भी IG। उसके बाद है अनियन, अनियन में हमने O लगा दिया तो बन गया पूरा अनियन वर्ड। लास्ट है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हमने क्या लग दिया यहाँ पे? U। तो हमारे ये 5 वॉवल्स आ गए, AEIOU। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द कॉन्सोनेंट। अब हमें इसमें कॉन्सोनेंट्स फिलअप करने हैं, तो सबसे पहले है बॉय। बॉय में मैंने क्या कर दिया? BOY बॉय। नेक्स्ट है काउ, काउ पे पिक्चर काउ की थी, यस। नेक्स्ट पिक्चर इज ड्रम, इसमें रम लिखा है तो मैंने D लगा के DRUM स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया। फिर है फ्रॉक, फ्रॉक की स्पेलिंग, अब फ्रॉक की कंप्लीट स्पेलिंग हो गई। नेक्स्ट इज ग्रेप्स, उसके बाद HUT हट,
JOKER, जोकर। नेक्स्ट है KITE, काइट। उसके बाद है LAMB, लैम्प। नेक्स्ट इज MANGO, मैंगो। और नेक्स्ट इज NOSE, नोज। पेंगुइन, ये हाफ स्पेलिंग्स हैं, हम इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड लगा रहे हैं तो स्पेलिंग्स बिल्कुल कंप्लीट हो गई। क्वीन, RAT, रैट। SNAIL, स्नेल। टॉर्टोइस, VIOLIN, वायलिन। WATCH, वॉच। XRAY, एक्सरे। YELLOW, येलो। एंड ZIP, जिप। तो हमने वर्ड्स जो थे बाय फिलिंग इन द करेक्ट कॉन्सोनेंट लगा के हमने वर्ड्स कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट इज A and an. An is used before the words that begin with the vowel sound. राइट जब वॉवल साउंड आता है वॉवल का तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, एन। ए नहीं लगाएंगे, एन। जैसे कि एस्ट्रोनॉट है तो एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट है तो हमने क्या कर दिया, एन एस्ट्रोनॉट। एलिफेंट है, ई वॉवल है ना तो हमने ए एलिफेंट। वी विल नॉट स्पीक ए एलिफेंट, वी विल स्पीक एन एलिफेंट। वी विल राइट एन एलिफेंट। आइसक्रीम, ए आइसक्रीम, नो, एन, बिकॉज आइसक्रीम स्टार्ट्स फ्रॉम आई, वॉवल। एंड आउल, ओ वॉवल है। एंड अम्ब्रेला, यू वॉवल वर्ड है। तो जो भी वॉवल वर्ड्स होंगे जॉवल तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एन, एन लगाएंगे, राइट। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक B, C, D, F, E, ठीक है। तो जैसे कि बुक, बुक बी से स्टार्ट है तो वी विल स्पीक अ बुक। अ फिश, बिकॉज एफ से स्टार्ट है एंड एफ इज कॉन्सोनेंट। एफ इज नॉट अ वॉवल वर्ड, एफ इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल स्पीक अ बुक, अ फिश, अ कैंगरू, अ मंकी, अ शिप, अ व्हेल। बिकॉज ये सारे वर्ड जो हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इनके आगे ए लगाएंगे, ए करके बोलेंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग अ बॉय। पहले जैसे बॉय है, अगर हमें किसी बॉय के लिए बोलना है, वी हैव टू स्पीक फॉर बॉय, तो हम बोलेंगे अ बॉय। जोकर, अ जोकर। लायन, अ लायन। टेबल, अ टेबल। पेंगुइन, अ पेंगुइन, राइट। अब वी विल स्पीक लाइक दिस। अब एन के आगे जो वॉवल के वर्ड्स हैं उनको कैसे बोलेंगे, जैसे कि एंट है, अ एंट, नो इट्स रॉन्ग, एन एंट, बिकॉज एंट ए से स्टार्ट है। एप्पल, अ एप्पल, रॉन्ग, एन एप्पल। एन आइसक्रीम, एन ईगल, एन अर्न, एन एग। डिफरेंस पता चला। मैंने एन क्यों लगाया, मैंने एन इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि ये वॉवल वर्ड्स थे, AEIOU वाले, ठीक। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले है इंक पॉट, स्टार्ट्स फ्रॉम आई, आई से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इंक पॉट। डॉल, डॉल डी से स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट, अ डॉल। इरेजर, इरेजर स्टार्ट्स फ्रॉम ई तो क्या आएगा, एन इरेजर। अ गोट, अ मैंगो, अ ऑक्स है, अ आएगा या एन आएगा, एन, बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, एन ऑक्स। एन इग्लू क्योंकि आई से स्टार्ट है। एन अम्ब्रेला, राइट। अब हमें क्या करना है, मैच ईच वर्ड विद द ए और एन अकॉर्डिंगली। वाओ, अब इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें मैच करेंगे कि कौन से ए से हैं और कौन से एन से, कौन से वॉवल कौन से कॉन्सोनेंट।
Which is vowel and which is consonant? Octopus. Very good, octopus. An octopus. So हमने इसको इधर कर दिया. Tree. A tree. Very good, because tree starts from T and T is consonant. Iceberg. An iceberg. X. An X. Nib. A nib. Fan. A fan. और I. An I. राइट? इस तरह से हमने इनको अलग डिवाइड किया कि कौन से वर्ड ए से आएंगे और कौन सा एन से चलेगा. नेक्स्ट है गुड मैनर्स. वाओ, कितनी अच्छी अच्छी पोएम्स हैं. गुड मैनर्स. चलिए, गुड मैनर्स. वी से थैंक यू, वी से प्लीज. वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज. व्हाट शुड वी से? अगर हमने स्नीज आई है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी. दैट इज द वे वी डू व्हाट्स राइट. वी हैव मैनर्स, वी आर पोलाइट. आपको पोलाइट होना चाहिए, आपको मैनर्स आने चाहिए. जब आप उसे कोई किसी से कुछ लेते हैं या आपको कोई कुछ देता है तो व्हाट शुड यू से? थैंक यू. और अगर आपसे आपको किसी से कुछ हेल्प लेनी है या कुछ, तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़. राइट? दीज आर द बेसिक मैनर्स. और आपको अपनी हैबिट में बहुत पोलाइट होना है, आर्ग्यू नहीं करना है, मेस नहीं करना है. राइट? तो दिस वॉज द पोएम. देखो ये बच्चा थैंक यू बोल रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है. वो बोल रही है, वो क्या कह रहा है बच्चा? प्लीज़. और ये एक्सक्यूज मी, क्योंकि इसको स्नीज आई है. तो सेम इसी तरह से यू हैव टू डू. आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. नाउ 3 letter words with the vowel sound. अब vowel sound के 3 letter words like at, at words की. bat, at, bat. cat, at, cat. fat, at, fat. hat, hat. mat, at. bat, pat, at, pat. rat, at, rat. और sat से sat. ये हमारे कौन से थे? ये थे हमारे एट वर्ड्स के. अब है ad, एड वर्ड्स. यदि कि जिसमें ऐड आएगा पीछे बैक में, जब मैं बोलूँगी तो आप भी रिवाइज करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे. bad, बैड. देखो मैंने ऐड बोला ना, लास्ट में ऐड आया. mad, मैड. pad, पैड. dad, डैड. lad, lad and sad, sad. तो आपने देखा हमने ऐड वाले वर्ड्स बोले थे ad, एड. तो पीछे इसके जब हमने वर्ड बोला तो मैट, एड, सैड, लैड, डैड, इस टाइप से साउंड आई थी. नेक्स्ट साउंड है एन. अब हम जो वर्ड्स बोलेंगे उसमें पीछे कौन सी साउंड आएगी? एन की. बैन, ban, बैन. pan, pan. can, can. ran, ran. fan, fan. van, van. and man, man. आपने देखा जब मैं बोल रही थी तो an की साउंड आती है, तो ये थे an वाले. नेक्स्ट है ap वर्ड्स. ऐप, ऐप. अब आप ध्यान से सुनिएगा, यू विल लिसन वेरी केयरफुली. जब मैं AP के वर्ड्स बोलूँगी तो उसका साउंड कैसा आएगा? AP, ऐप. अब कोई वर्ड होगा तो पीछे आएगा ऐप. लाइक CAP, कैप. RAP, रैप. GAP, गैप. NAP, नैप. TAP, टैप. LAP, लैप. MAP, मैप. एंड YAP, यैप, यानी कि ऐप. कैप, गैप, लैप, मैप, यैप, टैप, नैप एंड रैप. नेक्स्ट है AG. AG यानी कि एग. किसका आएगा साउंड? एग. AG, एग. BAG, बैग. सैग. RAG, रैग. TAG, टैग. नाउ AM, एम वर्ड्स. किसके आएंगे? एम. CAM, कैम. JAM, जैम. DAM, डैम. एंड YAM, yam. कैम,
jam, dam and yam. Next is AB words, ab words. CAB, cab. अब देखो AB में जब आप सुनेंगे तो AB में लास्ट में ab वर्ड आएगा. CAB, cab, GAB, gab, LAB, lab and TAB, tab. Cab, gab, lab and tab. नेक्स्ट है ALL. ALL में क्या आएगा, किसका साउंड आएगा? ALL वर्ड्स, यानी कि ALL ऑल. जो भी मैं वर्ड बोलूँगी उसके आगे आएगा ऑल. उसका जो साउंड आएगा वो ऑल का आएगा. BALL ऑल, बॉल. HALL हॉल. TALL टॉल and WALL wall. Next is AR words. R words. AR यानी कि जब हम साउंड बोलेंगे, कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसके लास्ट में आवाज़ कैसा साउंड आएगी? आर का. जैसे कि FAR फार, CAR कार, JAR जार एंड WAR वार. अब है AY मतलब AY में किसकी साउंड आएगी? A की. DAY डे, PAY पे, SAY से एंड WAY वे. डे, पे, से एंड वे. नेक्स्ट क्या है? सैम एंड राम. Sam is lad, Ram is tall. Ram is sad, Sam plays with a ball. Sam asks Ram to play. Sam and Ram play in the day. अब हम क्या करेंगे? Now we will do practice. क्या प्रैक्टिस करनी है? चलिए देखते हैं. Recognize and write the names of the given picture. अब हम इन पिक्चर्स के नेम लिखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज दिस? विच पिक्चर इज दिस? इज अ CAT cat and this is a picture of a boy, BOY boy. This is FAN fan and this is TAP tap. Right? अब है मैच ईच वर्ड विथ इट्स पिक्चर्स करेक्टली. अब हमें करेक्टली करना है. सबसे पहले विच पिक्चर इज दिस? इज जार, JA. ये तो जैम लग रहा है मुझे, स्ट्रॉबेरी जैम. यस, TAG टैग, JAM जैम. और फिर है नेक्स्ट पिक्चर इज किसकी है? नेक्स्ट पिक्चर डे की. दिन निकला हुआ है, सन निकला हुआ है, बर्ड्स आर ऑल्सो फ्लाइंग, यानी कि लैब, हॉल, कार एंड डे. डे से हमने मैच कर दिया. फिर ये एक बिग, थोड़ा सा बड़ा सा एक हॉल है. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हॉल. तो ये रहा HAL हॉल. एंड नेक्स्ट इज लैब. दिस इज लैब, लैब से मिला दिया. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टैग, TAG टैग. एंड लास्ट पिक्चर इज CAR कार. तो इस तरह से हमने इसको करेक्ट वर्ड से हमने पिक्चर को मैच करा है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. अब हमें करेक्ट वर्ड्स करना है. जैसे कि डैड इज ऑन द, डैड कहाँ बैठे हुए? डैड इज ऑन द मैट. मैट पे बैठे हैं ना, तो हमने लिख दिया डैड इज ऑन द मैट. is running after the rat. Who is running? Cat is running. तो हमने यहाँ पे लिख दिया a cat is running after the rat. Right? और next है 3 letter words with the vowel sound. अब हमें 3 letter words किसके करने हैं? vowel sound के. हमने A का कर दिया था. अब हमारा आ रहा है ET. ET है ET at. ET का साउंड कैसा होगा? एट, यानी कि BET बेट, GET गेट. एट का आ रहा है ना? एट. BET बेट, GET गेट, JET जेट एंड MET मेट.
N-E-T net, P-E-T pet, W-E-T wet and V-E-T wet. नेक्स्ट है E-N, E-N का साउंड होगा N, N, den, जैसे कि D-E-N den, H-E-N hen, P-E-N pen and T-E-N ten. After that E-D, E-D का साउंड होगा ed, ed, जैसे B-E-D bed, F-E-D fed, R-E-D red and W-E-D wed. राइट नाउ EG वर्ड्स, EG यानी कि एग, इसके बाद में आएगा एग, EG एग वर्ड्स, इसकी साउंड आएगी एग लाइक KEG कैग, EGG एग, LEG लेग, PEG पैग, फिर है ELL एल वर्ड्स, एल यानी कि BELL बेल, CELL सेल, TELL टेल एंड WELL वेल. इसमें किसकी साउंड आ रही थी? ELL में L की, BELL वेल जैसे, राइट. नेक्स्ट साउंड है हमारे पास बेन एंड जेन. बेन एंड जेन ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है. बेन हैज ए 10, hen lays the 10 egg, Jen has a peg, Jen keeps it near well, Ben met Jen, Ben sells eggs to Jen. इसमें आपने देखा लवली पोएम, इसमें आपने देखा इन सब में ई की साउंड्स आ रही थी. बेन, जेन, एग, सेल. तो अगेन फिर से रिवाइज करते हैं. बेन हैज ए hen, hen lays 10 eggs, Jen has a peg, Jen keeps it near well, Ben met Jen, Ben sells eggs to Jen. लवली पोएम. इसमें हमने देखा ई साउंड्स का कितने वर्ड्स थे, राइट. इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस, इट्स एन इंटरेस्टिंग पोएम. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. अब हमें इन पिक्चर्स को देखना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसके आगे हमें के नेम्स लिखने हैं. जैसे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है JET जेट, और फिर क्या है? ये तो एक डेन है, DEN डेन एंड BED. अब आप देख रहे हैं मेरे सारे वर्ड्स में E आ रहा है, BED बेड. नेक्स्ट क्या है? LEG लेग. इन सब में कौन सा था? सब में E वर्ड आया, राइट. और नेक्स्ट है राइट द ऑड वन आउट. अब हमें ऑड वन राइमिंग वर्ड्स कौन से नहीं है ये देखने हैं. फर्स्ट है जेट मेट रेड सेट, जेट मेट रेड सेट, यानी कि ये ऑड वन है. इसके लास्ट में है ED. इसमें GET जेट, MET मेट, SET सेट, लेकिन इसमें है RED रेड. तो ये ऑड वन आउट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट है BED बेट, FED फेड, WED वेट और EGG ऑड वन आउट है क्योंकि इसमें है EGG, बाकी किसी में नहीं है, बाकी सब में ED. तो दिस इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट है DEN डेन, KEG केक, MEN मैन, HGN हैन. तो कौन सा वाला अलग है? विच वन इज ऑड वन आउट? दिस इज KEG केक, क्योंकि DEN डेन, MEN मैन, HGN. बट ये है KEG केक, ये डिफरेंट है. तो हमने इनके नेम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए. नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द वॉवल. अब हमें इसमें वॉवल फिलअप करने हैं. जैसे कि सबसे पहले पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर इज NET नेट, कंप्लीट वर्ड. TEN टेन, इसमें भी कंप्लीट कर दिया E. RED रेड एंड WELL वेल. और ये फिर हो गए हमारे वर्ड्स एकदम कंप्लीट. नेट, टेन, रेड एंड वेल. नेक्स्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ए साउंड की एक बहुत अच्छी पोएम है. चलिए, क्लैप 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 योर हैंड्स टुगेदर, क्लैप 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 योर हैंड्स विथ चीयर. चीयर मीन्स बहुत चीयरफुल करके. नेक्स्ट है अब हमारी कौन सा? ई साउंड. ई साउंड रिनी द hen. Rinny was a hen. She walked down to the well to sit down for a spell.
Then she went to the shed as it was time to go to bed. आपने देखा इस पोएम में कितने सारे कौन से वॉवल साउंड के थे? ई साउंड के. Rini the hen. Rini was a hen. She walked down to the well. इसमें भी ई आ गया. To sit down for a spell. इसमें भी. Then she went to the shed as it was time to go to bed. This was the poem. And ये हमारा कौन सा है? E sounds के words. Right? अब हमें 3 letter words with the vowel I का करना है. I B वर्ड में कैसे साउंड आएगी? I B इब. जैसे कि I B इब में B I B बिब, N I B निब, R I B रिब, J I B जिब. नेक्स्ट है I D वर्ड्स. I D वर्ड्स में किसका साउंड आएगा? इड. I D वर्ड्स में I D इड वर्ड्स जैसे कि H I D हिड, K I D किड, L I D लिड एंड R I D रिड. बच्चों इसमें किसका साउंड आ रहा है? इड का. I D इड. इसी तरह से नेक्स्ट है आई जी इग. इग कौन सा साउंड आएगा? आई जी इग. बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, एफ आई जी फिग एंड डब्ल्यू आई जी विग. नेक्स्ट साउंड आएगा आई एम इम. आई एम इम. इम का साउंड आएगा डी आई एम डिम, टी आई एम टिम, आर आई एम रिम एंड डब्ल्यू वी आई एम विम. आई एम यानी कि इम की साउंड्स आई थी. नेक्स्ट साउंड्स हमारे पास आएंगी आई एन, जिसके लास्ट में आप सुनेंगे क्या बोलेंगे? इन. आई एन इन का साउंड आएगा जैसे कि बी आई एन बिन, बिन, पिन, टिन एंड विन, डब्ल्यू आई एन विन. इसमें किसका साउंड आया था? इन का. नेक्स्ट आएगा हमारे पास आई टी इट. किसका आएगा? इट वर्ड्स. आई टी इट जैसे कि बी आई टी बिट, पी आई टी पिट, के आई टी किट एंड एच आई टी हिट. आई टी साउंड आता है इट. आई एन इन का. इन से इनके लास्ट में ये वाली आवाज आती है. अब लास्ट में किसका साउंड आएगा? आई पी. जब भी आप कोई वर्ड बोलेंगे आई पी से किसका आएगा? इप का. जैसे कि सिप, लिप, डिप जैसे कि डी आई पी डिप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, जेड आई पी जिप. आप सुन रहे हैं ना, जैसे मैं बोलती हूँ उसके लास्ट में इप की आवाज आई. अब किसका है? आई डबल एल इल. इल की आवाज आएगी लास्ट में. इल का साउंड आएगा जैसे कि बी आई डबल एल बिल, के आई डबल एल किल, एच आई डबल एल हिल एंड पी आई डबल एल पिल. आपने सुना मैंने कैसे बोला? पिल, किल, डिल, चिल. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स. अब हमें इन पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है और फिर हमें इनके नेम्स लिखने हैं. सबसे पहले है बिब. आई बी की आवाज आई, बी आई बी बिब. अब ये क्या है? बिब के बाद है ये है बिब. नेक्स्ट है, इसको मैं छोड़ रही हूं किसके लिए? आपके लिए. और फिर मैंने यहां पे कर दिया विग और फर्स्ट आ गया बिब. ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए और ये मैंने कर दिया है विग, डब्ल्यू आई जी विग. और इन दोनों को आप रिकॉग्नाइज करेंगे क्या है ये दोनों पिक्चर्स. और ये पिक्चर्स मैंने आपके लिए छोड़ी है एंड यू हैव टू फिल इट. नेक्स्ट है राइट द ऑड वन आउट. अब फिर से हम ऑड वन आउट करेंगे. किड, कैन, पेन एंड टेन. तो इसमें कौन सा वाला ऑड एंड आउट है? किड, क्योंकि इसमें लिखा है के आई डी किड और बाकी लिखे हुए हैं कैन, पेन एंड टेन, है ना. नेक्स्ट है वैन, मैन, रैन एंड डिग. डिग, डिग का साउंड बिल्कुल अलग है यानी कि डिग इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट है वेल, हिल, टेल एंड सेल. कौन सा ऑड वन आउट है? वेल, टेल, सेल और हिल. हिल बिल्कुल अलग है तो हमने हिल को कर दिया यहाँ पे. हिल इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट है कॉल, मॉल, हिम एंड फॉल. यानी कि कॉल, मॉल, फॉल, बट ये है हिम. हिम बिल्कुल ऑड वन आउट है तो हमने हिम को यहाँ पे
राइट डाउन कर दिया, राइट। तो हमने यहाँ पे ऑड वन आउट के लिखे। एंड नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब हमें इसमें करेक्ट वर्ड के आगे सर्कल करना है। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिन और फिन। किसका है ये? दिस इज द पिक्चर ऑफ बिन। बिन को हमने सर्कल किया। दिस पिक्चर इज हिट या पिट? दिस इज द पिक्चर ऑफ हिट। लास्ट पिक्चर इज लिप और जिप। दिस इज द पिक्चर ऑफ ZIP, जिप। तो हमने इसको क्या किया? हमने आई की साउंड के वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया और उसमें हमने एक करेक्ट वर्ड के आगे हमने सर्कल लगाया। नेक्स्ट इज 3 लेटर वर्ड्स विद द वोवल साउंड ओ। अब हमें ओ लेटर्स के 3 लेटर साउंड्स के वर्ड प्रैक्टिस करेंगे। ओ बी, ओ बी ऑब वर्ड, ऑब, जिसके आगे बाद में आएगा ऑब। JOB जॉब, MOB मॉब, ROB रॉब एंड SOB सॉब। आपने देखा मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ उसके आगे OB ऑब। नेक्स्ट है OD ऑड, ऑड, COD कॉड, ऑड वर्ड, GOD गॉड, NOD नॉट एंड ROD रॉड। यानी कि OD के वर्ड्स आ रहे हैं ऑड ऑड करके। उसके बाद है ऑग, OG ऑग, ऑग वर्ड आएगा जैसे कि BOG बॉग, DOG डॉग, JOG जॉग एंड LOG लॉग। नेक्स्ट है OP वर्ड्स। लास्ट में OP सुनेंगे ऑप वर्ड्स जैसे कि कॉप, COP कॉप, HOP हॉप, MOP मॉप एंड TOP टॉप। ऑप वर्ड्स थे, राइट। अब है OT वर्ड्स, ऑट वर्ड्स, OT जैसे कि COT कॉट, हॉट, नॉट एंड पॉट। लास्ट है OX ऑक्स वर्ड्स, जिसके लास्ट में आता है ऑक्स, ऑक्स, OS ऑक्स, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स एंड लास्ट में POX पॉक्स। आपने देखा मैं इसके बाद में क्या बोलती हूँ? ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, पॉक्स। इनके बाद में आता है ऑक्स साउंड आती है, राइट। और अब है OY, OY, वाई, वाई, बी। इनके बाद में क्या आएगा? OY। इसका साउंड होगा OY का, OY का, जैसे कि BOY बॉय, JOY जॉय, TOY टॉय, SOY सोय। तो अभी हमने OY वर्ड्स करे, बॉय, जॉय, टॉय और सोय। नेक्स्ट है हमारे डबल O वर्ड्स, यानी कि ऊ के। इसमें इसकी साउंड होती है ऊ। BOO के बुक, COO के कुक, ऊ, COO के कुक, LOO के लुक और HOO के हुक। बुक, ऊ, बुक, कुक, लुक एंड हुक। अब हमें क्या करनी है? नाउ वी हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमें क्या करना है? पुट दीज वर्ड्स इनटू द करेक्ट कॉलम्स एंड ऐड अ फ्यू मोर 3 लेटर वर्ड्स विद द O साउंड। जैसे कि हमें अब यहाँ से हमें देखने O साउंड्स के वर्ड OT वाले, OT वाले जैसे हो गए हॉट, हमने लिख दिया नॉट, और एक और हमने कौन सा ढूंढा? हॉट, नॉट, और इधर हमने लिख दिया कॉट, राइट। अब हो गए हमारे OX के। OX के हो गए जैसे हमारे बॉक्स, BOX बॉक्स, FOX। और एक आपके लिए वर्ड है, ये वर्ड आप खुद लिखेंगे। नाउ है डबल O के, ऊक वाले, जैसे कि हमारा हो गया लुक, COO के कुक, राइट। और एक वर्ड फिर मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये यू हैव टू राइट इट, LO। अब हो गया OG ऑग, OG ऑग में सबसे पहले होगा लॉग, लॉग के बाद हो गया हमारा DOG डॉग, राइट। ये जो वर्ड्स हमने दो लिखे हैं, ये वर्ड से हमारे और 3 लेटर्स के वर्ड्स, वॉवल वर्ड्स। एंड नेक्स्ट ये 3 वर्ड्स कौन करेगा?
इन नेक्स्ट थ्री वर्ड्स यू हैव टू डू, राइट। अब हमारे मेक दीज मोर वर्ड्स सिमिलर टू द वंस गिवन। जैसे कि अब हमारे पास से वर्ड्स हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको देखेंगे, इनके साथ सिमिलर वर्ड लिखेंगे। जैसे बॉय का के साथ हो गया क्वाय, टॉय और जॉय, ठीक है। सॉब के आगे हो गया रॉब, मॉब। वन वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है। गॉड के साथ हो गया पॉड, रॉड, और एक वर्ड फिर आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट है मॉप। मॉप के आगे हो गया हॉप और पॉप। नेक्स्ट वर्ड, एक एक वर्ड्स बच्चों ये आपको करना होगा सोच के, और यू हैव टू डू। नेक्स्ट है थ्री लेटर वर्ड्स विद द वोवल साउंड यू। अब हमें यू के थ्री लेटर वर्ड्स करने हैं। तो यू बी अब वर्ड्स आएगा, सी यू बी कब, एच यू बी हब, आर यू बी रब एंड टी यू बी टब, यानी कि इसमें अब की आवाज आएगी। नेक्स्ट है यू जी वर्ड्स, यानी कि अग वर्ड्स, इनके आगे आएगी अग की, जैसे कि बी यू जी बग, डी यू जी डक, जे यू जी जग एंड एम यू जी मग, यानी कि इसमें किसकी साउंड आई है, अग की। मग, जग, डक एंड बग। नेक्स्ट इज यू एन अन वर्ड्स, यू एन अन, बी यू एन बन, आर यू एन रन, जी यू एन गन, एस यू एन सन। नेक्स्ट है यू टी वर्ड्स, अट वर्ड्स, इसमें किसका साउंड आएगा, अट, सी यू टी कट, एच यू टी हट, एन यू टी नट एंड जी यू टी गट। इसमें हमने किसकी साउंड सुनी थी, गट, अट की, कट, हट, नट एंड गट। नेक्स्ट है यू पी अप, अप वर्ड्स, अप, सी यू पी, अब इसमें आप सुनेंगे अप, सी यू पी कप, पी यू पी पप, यूपी वर्ड आया है तो यूपी से आ जाएगा अप, पप, कप। नेक्स्ट है यू डी, यू डी, यू डी में कैसी साउंड आएगी, अड, अड की आवाज आएगी। यू डी में हमेशा लास्ट में अड की आवाज आएगी, जैसे बी यू डी बड, एम यू डी मड। उसके बाद नेक्स्ट है यू डबल एल, अल, अल में यू डबल एल में किसकी आ जाएगी, उल, किसकी आवाज आएगी, उल, यू डबल एल उल, जैसे कि बी यू डबल एल बुल, पी यू डबल एल पुल, एफ यू डबल एल फुल, आ रही है ना आवाज, जी यू डबल एल गुल, बुल, पुल, फुल एंड गुल। नेक्स्ट है हमारी बहुत क्यूट सी पोएम टुनटुन एंड बुनबुन, और इसमें भी आपने देखा टी यू एन ऊ, टुन टुन एंड बी यू एल ऊ, बुल बुल, यू डबल एल आ गया, यू एन आ गया उन, और यू एन आ गया उन, टुन टुन। टुनटुन इज अ कप, बुनबुन इज अ बग, टुनटुन इज अ कप, बुनबुन इज अ बग, टुनटुन lives in a hut, Bunbun lives in a nut. They run in the sun. They had fun to play in a mud. तो हमने इसमें देखा ऊ की आवाज थी, टी यू एन टुन, बी यू एन बुन, सी यू बी कब, बी यू जी बग, एच यू टी हट, एन यू टी नट, एस यू एन सन एंड एम यू डी मड। अगेन एक बार फिर से पोएम बोलते हैं। टुनटुन इज अ कप, बुनबुन इज अ बग, टुनटुन लिव्स इन अ हट एंड बुनबुन लिव्स इन अ नट। They run in the sun. They had fun to play in a mud. उन्हें मड में खेलने में बहुत मजा आता है, वो enjoy करते हैं मड में खेलने में। And next again what we are going to do? We are going to do practice कि हमने कितना याद किया, हमें कितना समझ में आया। तो first of all look at the picture and fill in the blanks. Right? This is a picture of mug. तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजी अग,
इसको हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ व्हाट वी विल राइट हियर, MUG मग। हियर इज अट, अट में क्या लगा देंगे आगे, NUT नट। नेक्स्ट है उल, उल, उल में फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, BUL बुल। और फिर क्या है अप, अप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, PUP पप। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। अब हमें इनके नेम्स लिखने हैं। सबसे तो फर्स्ट पिक्चर इज बेबी लॉयन, तो ये आ जाएगा CUB कब। नेक्स्ट है टेस्टी टेस्टी चीज यू लाइक वेरी मच, यस राइट, दिस इज BUN बन। और फिर ये कौन लिखेगा, दिस इज फॉर यू। एंड एक चलिए एक और मैंने लिख दिया HUT हट। नाउ नेक्स्ट इज मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम करेक्टली। अब हमें पिक्चर्स के नेम करेक्टली लिखने हैं। सबसे पहले है TUB टब, एंड वेयर इज टब, चलिए ढूंढते हैं, मग, दिस इज TUB टब। मैच कर दिया हमने TUB टब से, इसको अपने ऐसे मैच कर दिया। नेक्स्ट है दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज मग, मग है सबसे ऊपर MUG मग। उसके बाद सन, MUD मड एंड SUN सन से मैच किया। और लास्ट MUD मड, तो ये रहा हमारा मड। तो ये क्या थे, यू के वर्ड से सारे, मग, टब, मड एंड सन, इनको हमने करेक्टली पिक्चर से मैच कर दिया। नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट वॉवल इन ईच ब्लैंक टू नेम द पिक्चर। अब हमें करेक्ट वॉवल भरना है पिक्चर में। पिक्चर्स देखिए, सबसे पहले ये है क्या है ये, पेन। पेन की व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन, PEN। तो कौन सा वॉवल आएगा इसमें, विच वॉवल विल कम, PEN पेन। नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज दिस, मॉप। मॉप, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉप, MOP। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया MOP मॉप। नेक्स्ट इज मैन, अ मैन इज स्टैंडिंग, स्पेलिंग ऑफ मैन MAN। और व्हाट इज दिस, ये एक वेल है जिसमें से वाटर निकालते हैं विलेजेस में। व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ वेल, WELL वेल। नेक्स्ट है HT, हट की व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ हट, HUT हट। नेक्स्ट इज BUN बन। तो हमने इस टाइप से इनको करेक्ट फिलअप कर दिया। एंड नेक्स्ट इज, अगला क्या है, नेक्स्ट इज मेक वर्ड्स लाइक द फर्स्ट वन। अब हमें वर्ड्स बनाने हैं जैसे कि फर्स्ट बना हुआ है, जैसे हट, कट, नट एंड बट। अब हमको ऐसे ही मैन का बनाना है, मैन MAN मैन। तो हम कर देंगे नेक्स्ट वर्ड PAN पैन, RAN रैन एंड CAN कैन। इस टाइप से हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट है पेट। पेट का क्या बन जाएगा, पेट का जैसे बन गया जेट, ठीक है, फिर बन गया वेट, और थर्ड बन गया हमारा SET सेट। पेट, जेट, वेट एंड सेट। उसके बाद है SIT सिट। सिट का कैसे राइमिंग वर्ड्स बनेगा, सिट का बन जाएगा पिट, PIT पिट, HIT हिट, और एक मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ये यू हैव टू कंप्लीट। नेक्स्ट है कॉट। कॉट का क्या बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा जैसे पॉट एंड हॉट। ये भी, ये टू जो हैं ये यू हैव टू फिल अप। कॉट का एक और आपने बनाना है, और हिट, सिट का भी एक आपको कंप्लीट करना होगा। नाउ है सिंग एंड लर्न। अब हमें ये वाली पोएम लर्न भी करनी है एंड वी हैव टू सिंग टुगेदर, राइट। E.T. likes to ride on her tiny white bike. E.T. likes to climb and she likes to hike.
यानी कि आपने देखा इसमें आई साउंड्स के वर्ड्स थे कितने सारे. इटी लाइक्स टू राइड, RIDE, राइड on her tiny white bike. Itty likes to climb and she likes to hike. So you have to learn this lovely poem. Again एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगी, एक बार फिर से बोलते हैं. आई साउंड्स की पोएम है. Itty likes to ride on her tiny white bike. Itty likes to climb and she likes to hike. उसके बाद नेक्स्ट है किसकी, ये है ओ. जो लव्स टू गो, देखिए ओ साउंड्स आ रही है. जो लव्स टू गो आउट इन द स्नो एंड ओन्स ए बोट दैट ही लाइक्स टू रो. नेक्स्ट है हमारी यू साउंड की पोएम, सुनिएगा. गुल्लू कैन यूज ए ट्यूब, इसमें यू आया. हाँ देखिए, GULLU गुल्लू and tube, TUBE. Gullu can use a tube of bright blue glue and run with the bun. Now his bike won't move. Again एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Gullu can use a tube of bright blue glue and run with the bun. Now his bike won't move. तो कितनी अच्छी पोएम्स थी हमारी साउंड्स की. एंड नाउ वाओ फन विद कलर्स. कलर्स के साथ हमें क्या करना है, यू नो कितने सारे कलर्स हैं. आई नो यू रिकॉग्नाइजेस द कलर्स वेरी मच, आपको पता होगा. विच कलर इज दिस, दिस इज रेड, रेड कलर. एंड दिस इज येलो, ब्लू एंड ऑरेंज. कैन यू टेल मी, जब फायर इंजन होता है, इंजन का कलर कौन सा होता है, फायर इंजन का कलर रेड. एंड यू लाइक बनाना वेरी मच, है ना, सबको बनाना बहुत अच्छा लगता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, यस इट्स येलो. एंड व्हाट्स द कलर ऑफ ब्यूटीफुल स्काई, जब हम ऊपर देखते तो कलर कौन सा है स्काई का, ब्लू कलर, यस ब्लू कलर का स्काई. एंड सन, जब बहुत तेज गर्मी होती है, व्हाट्स द कलर ऑफ सन, सन कैसा चमकता है धूप में, ऑरेंज कलर का. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इट सीम्स लाइक एन ऑरेंज कलर. Next is black and black is caw, crow. Crow का कलर कैसा होता है, black color. And mountains में जब आप जाते हैं तो दूर से जब आपको mountains दिखाई देते हैं, किस कलर के mountains दूर से दिखते हैं, brown. तो this is the color of, this is the color, which color is, this is brown color. And this is white, milk is white, this is white color. And green, cozy green color, कितना अच्छा लगता है. Grass is green color, trees are green color, leaves are in green color. This is green color. And rose, pink rose, yes this is pink. And this is golden color, this is the golden, ये golden color. And this is silver, जो चांदी जैसा कलर होता है, दिस इज सिल्वर कलर. एंकलेट्स जो पहनते हैं सिल्वर कलर की. एंड दिस इज ग्रे, जब बारिश आने वाली होती है तो आप क्लाउड्स को देखते हैं ना, बारिश जो होते हैं बादल से भरे हुए, वो कौन सा कलर लगता है, ग्रे कलर. दिस इज ग्रे कलर. सो अगेन वी विल रिवाइज. ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, गोल्डन कलर, सिल्वर and gray color. This is red color, yellow color, blue color and orange. तो अभी हमने क्या किया था बच्चों, हमने एक बार कलर्स को फिर से रिवाइज किया था. आई नो यू रिकॉग्नाइजेस द कलर वेरी मच, बट फिर भी हमने एक बार कलर्स को रिवाइज किया था. एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ दिस एंड दैट. हम कहाँ पे दिस लगाते हैं, वेयर वी यूज दिस एंड वेयर वी यूज दैट. When an object is near, हमारे पास होता है, we use this. जैसे कि this is a doll. डॉल बिल्कुल हमारे पास में है, तो this is a doll. This is a car. This is a top. And this is a ball. जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल near होती है तो we use this. और when an object is far,
यानी कि कोई चीज हमारे से दूर है, वी यूज दैट, लाइक दैट इज द सन। देखो दूर है ना सन, दैट इज द सन। दैट इज एन आउल, इस बच्चे से आउल बहुत दूर है, दैट इज एन आउल। दैट इज अ काइट, ये देखिए काइट ऊपर स्काई में है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ काइट। दैट इज अ रेनबो, रेनबो भी हमें दूर से दिखाई देता है तो हम बोलते हैं दैट इज अ रेनबो। मीन्स टू से कि जो चीज़ हमारे नियर होती है, मैं बोलूँगी दिस इज अ पेन, क्योंकि पेन मेरे पास है। अगर पेन बहुत दूर होगा तो मैं दैट इज अ पेन, तो जो दूर होगा उसको दैट, एंड जो बिल्कुल नियर होगा दैट दिस। सो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। तो कैट इज वेरी नियर, तो सो व्हाट वी विल राइट, विल राइट दिस इज अ कैट। एंड बुक जो है वो यहाँ से बहुत फार है, दूर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज अ बुक। अगेन ये बैग जो है, बैग कहाँ पर है, बैग इज वेरी नियर, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज अ बैग। एंड ट्री है, दैट इज अ ट्री, दूर है ट्री, दैट इज अ ट्री, हम यहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट दैट इज अ ट्री। इरेजर, इरेजर इज वेरी नियर, है ना, पास में, दिस इज इरेजर, तो वी विल राइट दिस इज अ इरेजर। अगेन आई विल राइट बिकॉज एच अच्छा नहीं था, दिस इज अ इरेजर। तो वी हैव रिटन दिस एंड दैट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग, अच्छा अभी थोड़ा सा और है, 3 सेंटेंस और है। व्हाट इज दिस, फैन, फैन इज नियर और फार, फैन तो बिल्कुल पास में, इसे दिस इज अ फैन, हम लिख देंगे दिस इज अ फैन। एंड काउ, काउ भी हमारे पास में, दिस इज अ काउ, तो हम लिख देंगे दिस, क्योंकि काउ पास में। बट हट जो है वो दूर है, दैट इज अ हट, तो दूर के लिए हमने लिख दिया, डिस्टेंस के लिए जो फार था, दैट इज अ हट। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ स्टोरी, यस नरेट द स्टोरी। अच्छा स्टोरी किसकी है, टॉर्टोइस एंड रैबिट की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन स्टोरी। अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाएंगे, और स्टोरी किसकी है, टॉर्टोइस की एंड रैबिट की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रैबिट एंड टॉर्टोइस स्टोरी। देयर वॉज अ जंगल, देयर लिव्ड ए वन tortoise and rabbit. They both were very good friend. जो tortoise था और rabbit था, ये बहुत अच्छे friends थे. They meet and they play daily. रोज मिलते थे, रोज खेलते थे. But जो rabbit था, he was little bit very proudy. वो हमेशा क्या बोलता था, boasted करता था. किसको, अपने friend tortoise को क्या बोलता था, I am very fast. मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, और यू आर तो वेरी स्लो, तुम कितना स्लो चलते हो। तो एक दिन टॉर्टोइस ने बोला, चलो हम दोनों जंगल में एक रेस लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो रैबिट जो था वो हंसा, ही लाफ्ड, कहने का रेस, चलिए ठीक है हम दोनों रेस लगाते हैं। और नेक्स्ट डे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो सब खड़े हो गए, किस लिए, रैबिट और टॉर्टोइस की रेस देखने के लिए। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट बिल्कुल डिसाइड हुआ, और एक एनिमल ने क्या किया, जोर से विसल बजाई, एंड रैबिट एंड टॉर्टोइस स्टार्ट वॉकिंग। एंड रैबिट तो नो डाउट तो बहुत फास्ट भागता था, ही वॉज वॉकिंग एंड वॉकिंग वॉकिंग फास्ट फास्ट फास्ट। उसके बाद और टॉर्टोइस स्लो 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 चलता जा रहा था। ये देखिए रैबिट फास्ट फास्ट जा रहा है, एंड टॉर्टोइस स्लोली 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 ही वॉज वॉकिंग। आफ्टर सम टाइम रैबिट ने पीछे मुड़ के देखा, टॉर्टोइस बहुत ही, वो सो फार, वो बहुत दूर था उससे। तो किसने, रैबिट ने सोचा, ही थॉट कि ही इज़ टू फार, वो तो बहुत स्लो है और बहुत ही धीरे चल रहा है, तो आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टेक रेस्ट। और वो एक ही सेट डाउन
अंडर अ ट्री। वो एक ट्री के नीचे बैठ गया मीनवाइल एंड ही स्लेप्ट, और थोड़ी देर में वो सो गया और वो सोता रहा। और जो टॉर्टोइज था वो स्लोली धीरे 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 चलता हुआ, उसने ही डिडंट टेक रेस्ट, उसने कोई रेस्ट नहीं लिया। उसने देखा ही वॉज स्लीपिंग, उसका फ्रेंड सो रहा था, और वो धीरे 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 चलता हुआ कहाँ पहुँच गया, वेयर, फिनिशिंग पॉइंट तक, विनिंग पॉइंट तक। एंड अचानक जब क्लैप किया सारे एनिमल्स ने, वाह टॉर्टोइज विन द रेस, टॉर्टोइज विन द रेस। जो रैबिट था वो उठा और उसने देखा टॉर्टोइज तो विनिंग पॉइंट तक पहुंच गया था और उसने रेस जीत ली थी। और इस तरह से टॉर्टोइज रेस जीत गया। तो इससे हमें क्या मिलता है, व्हाट्स द स्टोरी ऑफ द मॉरल, स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस तरह से कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, राइट? सो क्लैप। नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स। नाउ अब हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स करने हैं। राइमिंग वर्ड्स में क्या है बच्चों, जैसे कि सर्कल द वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड इन द बॉक्स। राइमिंग वर्ड्स में फर्स्ट है MET मैट, नेक्स्ट है MEN मैन, SAT सैट एंड PIN पिन। ये तो बिल्कुल अलग अलग है, चलिए पढ़ते हैं। मैट, मैन, सेट एंड पिन। इसमें राइमिंग वर्ड है मैन, मैट एंड सेट, तो हमने इसके आगे सर्कल कर दिया क्योंकि मैन नहीं है, पिन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है बेड, बेड, सेट, नन एंड फैट। तो कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हो गए, बेड के साथ फेड, बेड एंड फेड। नेक्स्ट है जिप, जिप, लिप, मैन एंड हॉट, जिप एंड लिप। तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स, जिप, लिप, बेड, फेड, मैट एंड सेट। नेक्स्ट है हॉट, हॉट का राइमिंग वर्ड्स, हॉट का है मैन, पॉट एंड सन, हॉट, मैन, पॉट एंड सन। आपको किसका लगा, हॉट का राइमिंग वर्ड क्या सा हो गया, पॉट, हॉट पॉट। लास्ट है नन, सन, हट एंड बग। आपको क्या लग रहा है, नन, सन, हट एंड बग तो नहीं है ना, तो नन एंड सन, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड में जैसे कि लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। अब हम जोर से वर्ड पढ़ेंगे, FREE, फ्री, BEE, डबल ई में कौन सी साउंड आएगी, ई की आवाज आएगी। FREE, फ्री, BEE, बी, ई की आवाज आ रही है ना। KNEE, नी, TREE, ट्री, ई की आपने सुनी, ई, बी, ट्री, नी। नेक्स्ट है फिर DEEP, डीप, JEEP, जीप, ई की आवाज आई। SLEEP, स्लीप, आपको साउंड किसकी आ रही है, ई की। SHEEP, शीप। अब है EA, EA में किसकी साउंड आती है, ईयर, ईयर, EA, ईयर। BEAR, बियर, DEAR, डियर, EA में किसका आता है साउंड, ईयर की। PEAR, पियर, HEAR, हियर। अब है नेक्स्ट है IGHT, LIGHT, लाइट। IGHT में किसका साउंड आता है, आइट का। IGHT में साउंड आता है, IGHT में साउंड आता है आइट का। NIGHT, नाइट। FIGHT, फाइट। TIGHT, आइट का है ना, TIGHT, टाइट। अब है ICE, आइस, यानी कि DICE, डाइस। NICE, नाइस। MICE, माइस, आइस का आवाज आ रहा है।
RICE राइस। तो इसमें साउंड आई बच्चों आइस की, डाइस, नाइस, माइस एंड राइस। नेक्स्ट है OSE ओज, इसमें साउंड आएगा ओज, ओज का, जैसे कि POSE पोज, DOSE डोज, NOSE नोज, ओज की आवाज आ रही है, ROSE रोज, पोज, डोज, नोज एंड रोज। नेक्स्ट है OUND आउंड, किसकी साउंड है, आउंड, ROUND राउंड, राउंड, SOUND साउंड, साउंड, POUND पाउंड, MOUND माउंड। नेक्स्ट है EAT यानी ईट, EAT ईट। अब इस पे मैंने H लगा दिया, HEAT हीट, साउंड थी ईट की। MEAT मीट, NEAT नीट एंड SEAT सीट। अभी हम साउंड्स पढ़ रहे हैं, साउंड्स को रिवाइज कर रहे हैं, एंड यू हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू स्पीक विद मी। आप मेरे साथ लाउडली बोलेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अब है UNCH, UNCH में किसका साउंड आएगा, अंच, अंच, UNCH अंच। इसके आगे मैंने B लगा दिया तो बन गया बंच, BUNCH बंच, PUNCH पंच, LUNCH लंच, MUNCH मंच, बंच, पंच, लंच एंड मंच। नेक्स्ट है EST एस्ट, किसका साउंड है, एस्ट। अब हमने N लगा दिया, NEST नेस्ट, BEST बेस्ट, TEST टेस्ट एंड लास्ट REST रेस्ट। नाउ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ फॉर्म ऑन द फॉर्म। फॉर्म में क्या चीज है, बर्ड, क्लाउड्स, डॉग, गोट, हॉर्स, फार्मर, ट्रैक्टर, और फार्मर के हाथ में है एक पॉट। और नेक्स्ट है वह कॉक का बैठा हुआ है, कॉक इज सिटिंग ऑन द हाउस। तो कॉक, बार्न, शीप, काउ, हेन, पॉन्ड, पॉन्ड भी है, देखिए पॉन्ड है और पॉन्ड में क्या है, डक है और उसके डकलिंग्स भी हैं, कितने सारे, 3 डकलिंग्स हैं। तो ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फॉर्म। फिर से देखिए कॉक, बार्न, काउ, शीप, हेन, डक, डकलिंग्स एंड पॉन्ड। और ये किसकी पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फार्म, फार्म की पिक्चर थी। एंड नाउ ही, शी एंड इट, ही, शी एंड इट, ही बॉय, शी गर्ल एंड इट जो होता है, जो पिक्चर्स होती है जिसमें जान नहीं होती, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। सर्कल द करेक्ट वर्ड वेयर ईच पिक्चर। तो अब आप बताएंगे इस पे ही, शी या इट। ही जो होता है वो बॉय के लिए यूज होता है, ही इज बॉय, ही इज यूज फॉर बॉय, शी इज यूज फॉर गर्ल एंड इट इज यूज फॉर जो, जिसमें जो, एंड इट इज यूज फॉर टॉयज या किसी भी चीज के लिए जिसमें जान नहीं होती, वो इट वहां के लिए यूज होता है। तो नाउ वी हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड ऑफ ईच पिक्चर। ही, शी एंड इट, इसमें कहा क्या आएगा, ही। और गर्ल है, गर्ल में हम कहाँ सर्कल लगाएंगे, ही, शी या इट, शी में, बिकॉज शी इज यूज फॉर गर्ल। एंड दिस इज द टेडी बियर, टॉय है, ही, शी और इट, इसमें हम सर्कल लगाएंगे इट में, राइट। नेक्स्ट है ही, शी एंड इट, where, which is the correct word, he, she or it, this is it. Next है he, she or it, it, it. Next है he, she, it, यहाँ पर he यानी कि he is a boy, तो हमने यहाँ पे he में सर्कल लगा दिया। Next is he, she, it, where, yes, it. Next is he, she या it, where we have to circle the correct word is he. And last
he, she या it. This is correct word. He, no, it, no, she. Circle will be in she, right? Next है is, am, are. Am का यूज होता है I am a girl. I am going to market. I am 5 years old. तो I जो होता है उसके आगे am लगता है and he, she में is लगता है. He is a boy. She is a girl. It is soft यानी कि मैंने बोला it is soft. It is hard. It is deep. यानी कि वहाँ पे क्या आता है यूज होता है is. And are यहाँ बहुत सारे. You are a girl. Where are you going? We are playing. They are going. तो वहाँ पे क्या यूज होता है are. Are uses you, we and they. Is uses he, she and it and am, I. अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. Use of these and those. अब हम करेंगे कहाँ पे where we use these and where we use those. These is used for many things near to us. जो चीज़ें बहुत सारी many things होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे पास near होती हैं. Where वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं these. And those is used, वहाँ these यूज़ होता है और those कहाँ पे यूज़ होता है बच्चों? Those is used for many things far from us. जो चीज़ें हमारे से दूर होती हैं वहाँ पे those यूज़ होता है. Like जैसे कि these are cats पास में है, these are cats. And stars बहुत दूर है तो those are stars. These are flowers and those are clouds. Clouds दूर है, those are clouds and these are flowers. यानी कि these पास के लिए, near के लिए जो बहुत सारी होती है और those जो बहुत सारी हैं but हमसे far है, हमसे दूर हैं. Let us practice. अब थोड़ा सा और देखते हैं. ये बुक्स हैं पास में हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? These are books. और ये birds हमारे से दूर हैं तो हम कहेंगे those are birds. Trees हमारे near हैं, these are trees. and mountains हमसे बहुत दूर हैं, far हैं, those are mountains. Now practice. Look at the picture and fill these and those. I hope you understand. अब हम practice करते हैं. चलिए बताइए ये क्या है? The cup है हमारे बिल्कुल near तो हम क्या लिखेंगे? These or those? These, because cups are very near to us. So we will write these are cups. And these parrots कहाँ पर है? Parrots दूर हैं तो हम क्या करेंगे? Those are parrots. Parrots वो रहे parrots और cups ये रहे cups पास में. These are cups and those are parrots. ऐसे kites हैं those क्योंकि kites बहुत दूर हैं तो हम लिख देंगे those are kites. Similarly, mangoes हमारे near है या far है? Mangoes are very near to us. These are mangoes. तो we will write these are mangoes. And this aeroplane जो है very far. Those are aeroplanes. तो we will write दूर है तो हम लिख देंगे those are aeroplanes. Same car. These are car. देखो ये कर है ना? These are cars. तो क्योंकि कार हमारे पास में है तो हमने लिख दिया these are cars. तो I hope you understand. जो चीज़ हमारे बिल्कुल नियर होगी वो these होगी बहुत सारी. जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें हमारे से दूर होती हैं वो those होती हैं. नेक्स्ट है yes and no questions. Right? Is this a pencil? Yes, it is. पूछा है कि is this a pencil? क्या ये पेंसिल है? Yes, it is. Is this a cat? Is this a cat? No, it is not. No, क्योंकि कैट नहीं है तो माउस है तो हम बोलेंगे no, it is not. तो सेम अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा है इन्होंने हमसे. Is this an apple? ये एप्पल है? Yes, it is. No, it is. No, it is not. क्या है? ये तो grapes है तो हम बोलेंगे we will write no, it is not. Is this an umbrella?
yes it is या no it is. yes अम्ब्रेला है ना, तो आप क्या लिखेंगे? yes it is. next is this a monkey? क्या ये monkey है? yes it is या no it is? yes it is. yes it is. is this a car? no कार नहीं है. no it is not. तो हमने यहाँ पे टिक का निशान लगा दिया. राइट. यूज ऑफ and is used to join two or more things together. and जो होता है वो दो थिंग्स को, जब दो होता है उनको together, उनको मिलाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? and. जैसे कि a cat and a rat, a flower and a leaf, a hen and her eggs, a dog and a pup. तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे हमने and, a flower and a leaf, हमने flower और leaf को ज्वाइन करके बोलना था तो हमने leaf कर दिया, and कर दिया. a hen and her egg, है ना, a dog and a pup. नेक्स्ट है a table and a chair, a cup and a saucer. तो आपने देखा बच्चों, हमने and वर्ड को बीच में ज्वाइन करके कैसे यूज किया. नेक्स्ट इज fun with shapes. fun with shapes में सबसे पहले कौन सी शेप है ये? दिस इज ट्रायंगल. दिस इज ट्रायंगल. रोड साइन भी होता है, जब ऐसे करके बना होता है ना, तो ये रोड साइन भी होता है. दिस इज ट्रायंगल शेप. दिस इज विच शेप इज दिस? दिस इज स्क्वायर शेप. ये स्क्वायर है ना, दिस इज स्क्वायर शेप. और आप जब चेस खेलते हैं, चेस का शेप कैसा होता है? स्क्वायर होता है. ऐसे कैरम बोर्ड का शेप भी जो होता है वो भी स्क्वायर होता है. तो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज सर्कल. दिस इज सर्कल. बटन भी सर्कल होता है और भी बहुत सी सारी चीज़ें सर्कल होती है. राइट. मम्मी की जो रोटी होती है वो भी सर्कल होती है, और सन होता है वो भी सर्कल, गोल. एंड दिस इज रेक्टेंगल. ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल होता है, और किसी किसी घर में विंडो भी रेक्टेंगल होती है, डोर भी रेक्टेंगल होता है. तो दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल शेप. दिस इज ओवल, ओवल. एंड दिस इज कोन. आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी इसी शेप का होता है. तो दिस इज कोन शेप. दिस इज क्यूब. डाइस जब हम खेलते हैं वो भी जो होती है वो भी क्यूब की शेप होती है. और ये क्यूबॉइड, और ये कपबोर्ड जो होता है, जो कबर्ड होता है, वो भी इस वाली शेप का होता है. एंड दिस इज स्फीयर. जो बॉल है वो कौन सी शेप होती है? वो होता है स्फीयर की. राइट. तो इस तरह से आपको शेप्स की पहचान करनी होगी. कौन कौन सी, विच शेप इज दिस, कौन सी शेप कैसी होती है. एंड नेक्स्ट इज वन एंड मैनी. वन एंड many. One is used for only one thing and many is used for with more than one thing. तो one girl and many girls. एक गर्ल है और ये बहुत सारी गर्ल है. One star and many stars. One star and many stars. बहुत सारे stars. One ball and many balls. One apple and many apples. बहुत सारे apples. One pencil, many pencils. बहुत सारी pencils. I have one pen or many pens? I have one pen. One duck and many ducks. One lemon and many lemon. जो more than one से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? many. Positions words in, on and under. और ये जो है बहुत अच्छी वाली पोएम है, इसका नाम है पोजीशन वर्ड्स. ऑब्जर्व द पोजीशंस. पोजीशंस को देखेंगे. द नेस्ट इज ऑन द ट्री. द नेस्ट इज ऑन द ट्री. द eggs आर इन द नेस्ट. eggs कहाँ पर है? इन द. द eggs आर इन द नेस्ट. द cow इज अंडर द ट्री. इसमें आपने देखा इन भी है, ऑन भी है और अंडर भी है. द नेस्ट इज ऑन द ट्री. द eggs आर इन द नेस्ट एंड द cow इज अंडर द
tree. Now we will do practice. अब हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी? इन, ऑन, अंडर. जो हमने अभी पोएम पढ़ी थी, जो अंडर होता है वो नीचे होता है, ऑन ऊपर होता है और इन बीच में होता है. तो द गर्ल इज इन द हट, क्योंकि गर्ल जो है कहां पर है? इन द हट. द डॉग इज, डॉग कहां पर है? कार के नीचे है, यानी कि द डॉग इज अंडर द कार. एंड द क्रो इज, ऊपर है, द क्रो इज ऑन द हट. एंड द कैट इज, कैट कहां पर है? टेबल के नीचे. द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है. द फिश इज, फिश कहां पर है? इन द पॉट. एंड द पॉट इज, और पॉट कहां पर है? पॉट इज ऑन द टेबल. पॉट टेबल के ऊपर है. द पॉट इज ऑन द टेबल. तो इस तरह से हमने इन, ऑन, अंडर को यूज किया विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस. नाउ ऑपोजिट्स. बच्चों ऑपोजिट्स क्या होता है? ऑपोजिट्स का मतलब होता है उल्टा. डे, नाइट, अप, डाउन, वाइट, ब्लैक, इन, ऑन. तो ये होते हैं हमारे ऑपोजिट्स. सो वी विल रीड द ऑपोजिट्स. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स. डे, नाइट. ये डे है, ये दिन है और ये फिर रात है ना. तो डे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नाइट. अप, ऊपर, ऊपर. अप का ऑपोजिट ऊपर का नीचे, यानी कि डाउन. ये देखिए अप एंड ये डाउन. बॉय, बॉय का ऑपोजिट क्या होगा? गर्ल. फैट, मोटा. मोटा का ऑपोजिट, फैट का ऑपोजिट थिन. मोटा का ऑपोजिट पतला. फैट, थिन. हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट सैड, है ना. तो ये थे हमारे ऑपोजिट्स. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. डे, नाइट, अप, डाउन, बॉय, गर्ल, फैट, थिन, हैप्पी एंड सैड. गुड, गुड. गुड का ऑपोजिट बैड. अब ओपन, खोला और उसका ऑपोजिट बंद किया, तो क्लोज. ओपन, क्लोज. सिट, सिट मीन्स बैठना एंड स्टैंड मीन्स खड़े होना, यानी कि सिट का ऑपोजिट स्टैंड. गुड, बैड, open, close and sit, stand. These are the opposite words. Now action words. These are the action word. Wow, the boy is क्या कौन सा एक्शन कर रहा है? He is jumping and this boy is walking. ये चल रहा है. And he is running. Both boys are running. And this boy is writing. They are doing some action. And we are doing, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? We are doing action words. He is, the boy is reading. And the girl is eating. यानी कि everyone is doing कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्शंस चल रहे हैं. He is playing and this boy is bathing. तो jumping, he is walking, boys are running and the boy is writing, this boy is reading, the girl is eating, he is playing and he is taking bath, bathing, नहा रहा है. She is dancing. Mother, this girl is cooking. The child is weeping and she is smiling. These are the action words. Dancing, cooking, weeping and smiling. These are the action words which you have to learn. अभी हम क्या करेंगे? Days of the week. Days of the week पढ़ेंगे. तो we will sing aloud. हम जोर से पढ़ेंगे. On Monday I go to school. On Monday I go to school. On Tuesday I walk to the pool. On Wednesday I feed my cat. On Thursday I clean my flat. On Friday I read a book. On Saturday I am a cook. On Sunday I lie in the sun and eat a delicious fun.
आपने देखा इस पोएम में जो थे हमारे सारे डेज ऑफ द वीक आ गए थे। सबसे पहले क्या था, ऑन मंडे, फिर ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे एंड संडे। इस पोएम से हमने क्या किया, हमने डेज ऑफ द वीक लर्न करे। फिर से बोलेंगे, ऑन मंडे आई गो टू स्कूल, ऑन ट्यूसडे आई वॉक टू द पूल, on Wednesday I feed my cat, on Thursday I clean my flat, on Friday I read a book, on Saturday I am a cook, on Sunday I lie in the sun and eat a delicious bun. This was the poem जिसमें हमारे क्या थे, days of the week. Next है number names. अब हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में हम सिंग अलाउड जोर से करेंगे। 1 2 3 4 5, once a caught a fish alive, 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive, 7 8 9 10, then I let it go again. Why did you let it go? Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. तो ये हमारे क्या था, नंबर नेम्स, जिसमें 1 से लेके जो था सारे नंबर आ गए थे 10 तक। 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. How beautiful poem. इस पोएम को आप सब बच्चे लर्न करेंगे। तो हमारी पोएम कितनी अच्छी थी, एंड यू हैव टू लर्न दिस पोएम वेरी गुड, बिकॉज इसके थ्रू यू विल लर्न द नंबर आल्सो फ्रॉम 1 to 10। हम 1 to 10 तक हम नंबर भी लर्न कर लेंगे, राइट? So stay tuned for new video. Bye bye.